Hello friends. Today in Elements of Account, Part 1, Standard 11, Chapter number 1st, Accounting and its terminology. Today we are going to learn about advantages of accounting and limitation of accounting. Now this is our 2019-20 Shining Star result. So if you all are working very hard, you can also achieve such type of result. Now advantages of accounting. First, availability of accounting information. Accounting information is prepared by any owner of any business if this information is readily available. It can be used by the owner as when it is needed. Example, an owner wants to obtain a loan from bank. He can produce prepared accounting information of his economic status and can obtain the loan. Now, what are the advantages of accounting? First, availability of accounting information. So now every owner of the business prepared accounting information. Why they prepare books of account? Because whenever he want information, he can easily get information from books of accounting. तो आज कोई भी स्मॉल ट्रेडर्स है या बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, या मैनुअल सिस्टम या कंप्यूटराइज सिस्टम या देसी नामा डबल एंट्री सिस्टम? तो उसका मेन एडवांटेजेस ये है कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन रेडी मिल जाएगी आपको. जैसे किसी बिजनेसमैन को जानना है कि भाई मई मंथ के अंदर कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ. अब ओरली तो कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन ये आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखा है, मेंटेन किया है, सो यू विल गेट इजीली इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ये एक एडवांटेजेस मिलेगा. जैसे आपने जब आप लास्ट ईयर 10th में थे तो उसमें मैथ्स साइंस की बुक रेडी की है, रिटर्न के अंदर सभी चैप्टर लिखे हैं. सपोज आपको इस साल कोई मैथ्स का एग्जाम्पल समझना है, चाहिए, तो आपने अगर लास्ट ईयर बुक्स के अंदर सब लिखा है तो आज उसको ओपन करके आप सीख सकते हो. लेकिन सपोज आपने 10th के अंदर मैथ्स की नोटबुक ही नहीं बनाई थी, साइंस की नोटबुक नहीं बनाई थी, तो आज आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती. तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ा है. एंड व्हेन ऑनर ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्ड मोर मनी, और अगर उसको बैंक से लोन लेना है, तो कोई भी बैंक के अंदर आप लोन लेने के लिए जाओ तो बैंक जो है वो सीधे आपको लोन नहीं देती. बैंक आपका इकोनॉमिक स्टेटस देखेगी कि आप जो लोन लेने के लिए आए हों, यू आर इकोनॉमिक सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट. आपकी सॉल्वेंसी देखेगी बैंक. तो उसके लिए आपको लास्ट 4 या 5 इयर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके इनकम टैक्स रिटर्न आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. तो उनको उससे आपका इकोनॉमिक स्टेटस मालूम होगा कि भाई जिसको लोन लेनी है वो लोन की अमाउंट पेड कर सकता है या नहीं. तो वो आपका इकोनॉमिक स्टेटस देखेगा, आपके 4 या 5 इयर्स के रिटर्न, कितना आपने इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो फिर इजीली यू विल गेट अ लोन फ्रॉम बैंक. सो द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस availability of accounting information. Second thing, to know profitability. During specific accounting period, how much profit is earned
or how much loss is incurred by the business. This information is provided by accounting. This information is ascertained from profit and loss account. To know profitability, as we all know that the main purpose of every business is to earn a profit. So if owner of the business prepared books of account, so during a specified accounting period, so mainly there are 2 years. One is a calendar year and second is the accounting year. Our calendar year always starts on 1st January and with ends on 31st December. But accounting year always begins with 1st April and end with 31st March. So accounting year is 1st April to 31st March. If owner of the business prepared books of account, then at the end of the year, he can get the information how much profit is earned by the business or how much loss is incurred by the business. तो अकाउंटिंग का जो ईयर है वो 1st अप्रैल टू 31st मार्च होता है. अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन की है तो आप 31st मार्च को आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो जो बिजनेसमैन है वो एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो उसके अंदर बिजनेस की कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, वो सब रिकॉर्ड करते हैं. एंड इफ योर इनकम exceeds over expense, it means you earn a profit. And excess of expense over income, that is loss. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आपने प्रॉफिट किया है, लेकिन अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो आपका लॉस हुआ है. थर्ड थिंग, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस. At the end of the period, what is the size of liability for the business can be as certain. If the size of liability of business is more, it indicates weak economic condition. If the size of liability of business is less, it indicates good economic condition. This economic status can be ascertained through balance sheet. So, to know financial status. So at the end of the year, owner gets the information what is the size of liabilities for the business. So there are two liabilities. One is a non-current liabilities and second is the current liabilities. Any liabilities whose duration is more than 1 year, that is long-term liabilities or non-current liabilities. And duration of current liabilities is 1 year or less than 1 year. If the size of liabilities is more than assets, it indicates that business having weak economic condition. And if the assets of the business is more than liabilities, it clearly indicates that good economical condition. तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करते हो तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस आपको मिल जाएगा कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस वीक है या गुड कंडीशन है. अगर लाइबिलिटीज आपकी एसेट से ज़्यादा है तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है. एंड इफ योर liabilities is less than your asset, means you are in good economical condition. And ऑनर ऑफ द बिजनेस प्रीपेड बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट मैं आपको पार्ट 2 के अंदर सिखाऊंगा. उससे आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. फोर्थ, टैक्स प्लानिंग. टैक्स ऑन अर्न इनकम हैज टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट in different forms.
The determination of tax size is based on quantum of transaction of business. Keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is as certain from accounts. From this information, planning for tax payable during the period can be made. So, tax planning. So, as per income tax rules, if your earned income is more than 5 lakh, you have to pay income tax to the government. And if your quantum of transactions are more, you have to also pay GST to the government. तो कोई भी अगर बिजनेस है, उसने जो प्रॉफिट किया है तो उस पर उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है. सो एवरी बिजनेस हैज़ टू पे टैक्स फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स like GST, sell tax, income tax, and all the tax is based on the size of transaction of business. आपके कितने ट्रांजेक्शन है, आपका कितना टर्न ओवर है, उस पर आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है. अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते तो कितना टैक्स देना है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. बट इफ owner of the business prepared books of account, so you will get how much profit earned at the end of the year. So it can be easily decide tax planning, क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना हुआ उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है. तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हो जाएगी तो आप टैक्स प्लानिंग कर सकोगे. अब रेगुलर टाइम पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर सकोगे. So for this information, planning for tax payable during the period can be made. तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. Valuation of business. In practice, sometimes an owner sells his own business to another person. Under these circumstances, what should be the selling price of business? Accounting is helpful to determine the selling price. What is the profitability of business? What is the economic condition? This sort of information is provided by accounting. Therefore, in this manner, accounting assists in business valuation. So, valuation of business. Sometimes, owner of the business want to sell his own business to other person or other company. So at that time, what is the selling price of business? अगर किसी को अपना बिजनेस किसी को बेच देना है, जैसे वोडाफोन ने आइडिया के साथ मर्ज कर लिया, तो वोडाफोन ने अपना 50% शेयर अगर आइडिया को बेचा है तो उसकी क्या सेलिंग प्राइस होगी? पहले जो व्हाट्सएप था वो डिफरेंट कंपनी थी, लेकिन जब व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस फेसबुक को सेल कर दिया तो बिजनेस की सेलिंग प्राइस तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना. सो अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस. एंड वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इज डिपेंडेंट्स ऑन द हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न एंड व्हाट इज द योर इकोनॉमिकल कंडीशन. दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग. तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, आपका टर्नओवर कितना है, आपकी प्रेस्टीज मार्केट के अंदर कितनी है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके बेस पर आपकी वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस हो जाएगी. फिर आप अपना बिजनेस सेल कर सकोगे. सो अकाउंटिंग इज गिव्स information of valuation of business, decision making. Different forms of business like sole proprietorship, partnership firm and company prepare their own accounts. Specifically, accounts of company are used by several stakeholders like creditors,
shareholders, investor for this investment decision. Accounting plays a vital role in decision making. So there are different forms of business like sole proprietorship. तो सॉल प्रोप्राइटरशिप जिसको आप इंडिविजुअल फर्म भी बोल सकते हो, जब एक ही पर्सन बिजनेस के अंदर कैपिटल लाता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस उसका ही रहता है और बिजनेस के सभी वो डिसीजन लेता है, तो वो इंडिविजुअल फर्म या सॉल प्रोप्राइटरशिप है. कोई छोटा प्रोविजन स्टोर्स या जेरोक्स की दुकान या स्टेशनरी शॉप, वो सॉल प्रोप्राइटरशिप में है. पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 और मोर देन 2% एंड लेस देन 50% होते हैं. तो कई लोग बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर चलाते हैं, उसके अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 आप पार्टनर रख सकते हो. एंड द कंपनी, तो कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, एशियन टाइल्स कंपनी है, वो सब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करते हैं. क्योंकि आपके बुक्स ऑफ जो अकाउंट है उसका जो यूज़ है वो क्रेडिटर्स करता है. मतलब जिसको आपको क्रेडिट के अंदर गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्रेडिटर्स भी देखेगा कि भाई मैं जिसको क्रेडिट पे गुड्स दे रहा हूँ उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वो पे करेगा कि नहीं. शेयर होल्डर जो कंपनी है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर होल्डर भी देखेगा कि भाई हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट अच्छा मिल सकेगा, वो डिसीजन ले सकता है. इन्वेस्टर्स जो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको भी डिसीजन लेना है कि आपकी जो कंपनी है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन गुड है या वीक. तो वो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेंगे, वो इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे, फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे. जैसे आपको कोई बैंक के अंदर या LIC के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप भी देखोगे ना कि भाई कितना इंटरेस्ट मिल सकता है और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है. फिर सो हियर accounting play a vital role in decision making. As an evidence, the information of account is based on accounting rules and principles. Thus accounting prepared in such manner are considered reliable. Due to this quality of reliability, at the time of any dispute, accounts are used as evidence. Example, in case of any dispute in the context of account between partners or partnership firm, accounts become evidence to bring solution for the purpose of justice. So as an evidence, so accounting having based on principles, जैसे साइंस के बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैसे ही अकाउंट के भी अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन हैं. तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो तो उसके जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के, उसके मुताबिक बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी होता है. तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपके जो बुक्स हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, मतलब उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसके अंदर पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो अगर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करना है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट से आप इजीली वो डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेंटेन है. अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी आप इजीली उसका जो शेयर है उसको रिटर्न कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट you can solve the dispute between the partners and partnership firm. So accounts become evidence to bring solution for the purpose of justice. Comparison with past operations.
The rules and principles of account do not change. Due to this feature, present performance of profitability of economical condition can be compared with past, and information for the development of business can be obtained. If development has not taken place or is not as per expectation, planning can be undertaken to achieve it in future. Apart from this, accounts can be compared with the accounts of competitors. So comparison with past operations. So in account, rules and principle do not change. आपका बिजनेस चेंज हो सकता है, लेकिन जो अकाउंट के जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स है, प्रिंसिपल, वो कभी चेंज नहीं होती. So due to these features of accounting, you can compare your profitability and you can also check your economical condition compared with your past performance. तो अकाउंट के रूल्स और प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होते. तो इससे आपका जो करंट ईयर है उसका प्रॉफिट और पास्ट के अंदर कितना प्रॉफिट आप उसको कंपेयर कर सकते हो. 2021 का इकोनॉमिकल कंडीशन आपका और 2020 में कंडीशन क्या था उसको आप कंपेयर कर सकते हो. तो उससे आपका बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. So if development has not taken place or is not as per expectation, planning can be undertaken to achieve in future. अगर पास्ट ईयर से आपका अच्छा कोई डेवलपमेंट नहीं है तो आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए, ताकि आपका सेल्स इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए. तो आप कंपेयर कर सकते हो. जैसे आप 8 के अंदर थे, फिर 9th के अंदर आए, तो 9th में आपके जो परसेंटेज है तो आप 8 के परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हो कि भाई 8th के अंदर थे तो मेरे 75 है और यहाँ पर 80 है, तो मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है. लेकिन अगर सपोज 75 का 60 हो गया, सो इट मीन्स यू विल गेट सम न्यू प्लानिंग टू अचीव योर गोल्स. तो अगर परसेंटेज 8 से 9 में कम आए तो आपको प्लानिंग करना चाहिए, तो 10th के अंदर कुछ आप अच्छा अचीवमेंट कर सको. Apart from this, accounts can be compared with accounts of competitors. आपके जो competitors हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हो. जैसे मारुति और हुंडई के बीच में कंपटीशन है, मारुति है और निसान मोटर्स के बीच में कंपटीशन है, होंडा का एक्टिवा और जुपिटर के बीच में कंपटीशन है. तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई इन मंथ ऑफ मई उसका सेल कितना था और हमारा सेल कितना है, उसने कितना प्रॉफिट किया, हमने कितना प्रॉफिट किया. जियो है तो एयरटेल से कंपेयर करेगा भी उसके कस्टमर कितने, हमारे कितने हैं, कितने कस्टमर इंक्रीज हुए, कितने प्रॉफिट इंक्रीज हुए. सो यू कैन ईजीली कंपेरिजन विथ योर पास्ट operations and you will also compare with your competitors. Then corrective measures. Now number 9, moral controls. Accounts are in written form. These are used as evidence. Thus the chances of fraud made by employees are reduced. Accounting assists to keep moral control over the employees. So main advantages of accounting to moral control over the employees, because as you all know that accounts are always in written form. So if owner of the business record all the transactions, purchase, sell, stock, assets, so the books of accounts are used as an evidence. So the chances of fraud made by employees are reduced. अगर आप हर
ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, आपका स्टॉक डेली, आपका जो स्टॉक है वो डेली आप चेक करते हो, तो उससे आपका जो एम्प्लॉइज़ है उस पर मॉरल कंट्रोल आ जाएगा कि भाई ऑनर रेगुलर स्टॉक मेंटेन करता है, अगर कम हो गया तो भाई मेरा नाम आएगा, वो फ्रॉड के अंदर मेरा हो जाएगा। जैसे आप रिलायंस मॉल के अंदर जाते हो तो उसका ऑनर तो कभी नहीं आता, आपने देखा कि भाई मुकेश अंबानी कभी ओपनिंग के लिए भी नहीं आता, तो अगर सोचो उसका ऑनर कभी विजिट भी नहीं करता, तो फिर भी उसके एम्प्लॉई क्यों ऑनेस्टली वर्क करते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि उसने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, और कोई भी वो चीज़ सेल करता है तो उसका कंप्यूटर के अंदर एंट्री हो जाती है, और जब आप हिम्मतनगर से या अहमदाबाद से परचेस करते हो तो उसकी सीधी इफेक्ट उसका जो हेड ऑफिस है मुंबई, वहाँ पर भी होती है। वो सब वाईफाई से सब लिंक किया हुआ है, तो हिम्मतनगर के अंदर आप परचेस करते हो तो उसका हेड ऑफिस मुंबई में मालूम हो जाएगा कि भाई आज इतना सेल हुआ है, और फिर डेली वो स्टॉक मेंटेन करते हैं कि भाई पार्ले के 100 पैकेट्स आए थे और 90 सेल हो, तो देख लो 10 है कि नहीं। तो उससे आपके एम्प्लॉय को मालूम है कि वो जो काउंटर पे खड़ा रहता है कि भाई अगर वो यहाँ पर कुछ भी चीज़ कम हुई तो मेरा नाम आने वाला है। सो द चांसेस ऑफ फ्रॉड मेड बाय द एम्प्लॉयज आर रिड्यूस्ड, वो कम हो जाएगा। सो उस पर वो जो एम्प्लॉय है उस पर आपका एक मॉरल कंट्रोल हो जाएगा, तो वो फ्रॉड नहीं करेंगे और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। 10 corrective measures. In practice, it is so happens that the business suffers due to some past decision made by the owners or the management of business. The effect of this decision are reflected in the accounts. To avoid the recurrence of such mistakes, corrective measures and necessary care is generally taken. So corrective measures, आपका जो बिजनेस का जो डिसीजन है, सो डिसीजन से अगर आपका जो रॉन्ग डिसीजन है तो आपको लॉस हो सकता है, और आपका करेक्ट डिसीजन है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो डेली आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो हमने डिसीजन लिया था उससे, लास्ट टाइम हमने जो डिसीजन लिया था उससे हमारा प्रॉफिट हुआ था, या लास्ट टाइम हमारा जो डिसीजन था उससे हमको लॉस हुआ था। तो उससे आप सीख सकते हो और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। जैसे कोई प्रोविज़न स्टोर्स का ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, लास्ट ईयर उसने वीट राइस जब परचेस किए, फिर मार्केट के अंदर उसकी प्राइस डाउन हो गई थी, तो उसको इस साल मालूम रहेगा भी लास्ट ईयर मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था, ये मंथ में मैंने परचेस किया, उसकी जगह ये मंथ के अंदर परचेस किया होता तो कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा। तो उससे आपकी जो पास्ट में जो मिस्टेक हुई है वो आप सुधार सकते हो, उसके अंदर चेंज ला सकते हो। जैसे आपके पास 8 की मार्कशीट थी, तो अब 9 के अंदर जब आप 8 की मार्कशीट देखते थे तब आपको मालूम हो जाए कि भाई लास्ट ईयर में मैथ्स के अंदर वीक था या साइंस के अंदर वीक था या मेरा मैथ्स अच्छा था। तो आपकी जो पास्ट के अंदर जो मिस्टेक हुई थी वो आप नेक्स्ट ईयर के अंदर उसको अच्छे से कर सकते हो। अगर आपका जो वीक जो सब्जेक्ट है उस पर आप थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हो। तो बिजनेस के अंदर ये होता है, अगर पास्ट में आपका कोई लॉस हुआ था तो वो अच्छे से आप फ्यूचर के अंदर उसको सुधार सकते हो। टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ सच मिस्टेक्स, करेक्टिव मेजर्स एंड नेसेसरी केयर इज जनरली टेकन। तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। नाउ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, non-financial transactions. In accounting, those transactions are recorded, the value which can be measured in terms of money. Example, purchase, sale of material,
purchase sale of asset, etc. The qualities like honesty, loyalty, commitment of employees working in the organization play a significant role for the development of business. These aspects are not considered in accounting. So limitation of accounting. First, non-financial transaction. In books of account, only economic transactions are recorded. Economic transaction means those transactions which can be measured in terms of money, like purchase 5,000, purchase 50,000, sell 20,000, purchase of asset 1 lakh, sell of asset 2 lakh. These all transactions are measured in terms of money. तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसका मनी के अंदर मेजरमेंट निकल सकता है. बट सम ऑफ द क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग, तो कई चीज ऐसी भी है जिसका मेजरमेंट मनी के अंदर नहीं निकल सकता. जैसे आपके एम्प्लॉय ऑनेस्टली वर्क करे, उसके लॉयल्टी है, वो कमिटमेंट पर काम करते हैं. सो दिस प्ले अ वाइटल रोल इन बिजनेस. लेकिन ऑनेस्टी उसका मनी के अंदर मेजरमेंट नहीं निकल सकता. लॉयल्टी है उसका मनी के अंदर मेजरमेंट नहीं निकल सकता, और बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता. दिस एस्पेक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग. तो ये प्रॉब्लम है. यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते. सेकंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. Accounting assume that the value of money is stable. Example, an asset was purchased before 5 years for 50,000. If replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 has to be paid to acquire some same type of assets. Due to inflation, accounting assumes the value of money remains stable. Practically, this is not possible. A stable value of money assumption can be treated as a limitation of accounting. So the main limitation of accounting that accounting assume that the value of money is stable. तो अकाउंट के अंदर ऐसा सोचा जाता है कि मनी है उसकी वैल्यू स्टेबल है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज आपने 2 इयर्स पहले एक्टिवा 50,000 के अंदर लिया था. अगर 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स वही एक्टिवा लेने के लिए जाओगे तो 50,000 में वो आपको नहीं मिलेगा. ड्यू टू प्राइस राइजिंग और इन्फ्लेशन इन द मार्केट यू हैव टू पे मोर देन 50,000. तो अकाउंट तो बोलता है कि भाई वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल. अगर मनी की वैल्यू स्टेबल होती तो वो 50,000 का एक्टिवा 5 इयर्स के बाद भी 50,000 में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर आपने कोई मशीनरी 50,000 में परचेस की थी और 5 इयर्स या 10 इयर्स के बाद वही मशीनरी आप परचेस करने के लिए जाओगे तो वो आपको 50,000 में नहीं मिलेगी. यू हैव टू पे मोर देन 50,000. सो दिस इज द लिमिटेशन. अकाउंट तो कह रहा है भाई स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकली इसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो 50,000 की चीज 5 इयर्स के बाद 50,000 में आपको मिलने वाली नहीं है. हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस इवेंट. In accounting, historical transactions or events are recorded. No correction are allowed in transaction for any mistakes, but still historical transactions and events are useful to take future decision. तो एक लिमिटेशन ये भी है
कि जो अकाउंट के अंदर है ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। एक बार आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए हैं उस पर ही सभी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। नो करेक्शन आर अलाउड इन ट्रांजेक्शन, मतलब जो लोग मैन्युअल अकाउंट लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर एक बार आपने लिख दिया फिर आप उसके अंदर करेक्शन नहीं कर सकते। आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर तो आपने गलत लिख दिया तो आप करेक्शन कर सकते हैं या वाइटनर लगा सकते हैं या पेज फाड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग मैन्युअल अकाउंटिंग लिखते हैं, सो एज पर हिस्टोरिकल अकाउंटिंग सिस्टम नो करेक्शन आर अलाउड इन ट्रांजेक्शन, मतलब आपने कोई गलती कर दी तो उसके अंदर आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन जब से अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हो गया तो ये करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एडिट होता है। अगर आपने कहीं पर गलती कर दी तो आप उसका नेम चेंज कर सकते हो या अमाउंट चेंज कर सकते हो। लेकिन जो लोग मैन्युअल अकाउंट लिखते हैं, हाथों से अकाउंट लिखते हैं, तो एक बार आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर गलती कर दी, सो नो करेक्शन आर अलाउड इन ट्रांजेक्शन फॉर एनी मिस्टेक। तो ये एक बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं। एंड इवेंट्स आर यूजफुल टू टेक फ्यूचर डिसीजन, और कई बार वही इवेंट आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल है लेकिन आप उसके अंदर करेक्शन नहीं कर सकते। फोर्थ थिंग, एविडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एसेट कीप्स ऑन चेंजिंग, their market price keeps on changing. In accounting, market value is ignored and only actual cost based treatments are given. So avoidance of market value, तो ये प्रॉब्लम ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो आपकी जो एसेट है वो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी है, उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू चेंज होती रहती है। So the market price of all the assets keeps on changing, but as per accounting system, market value is ignored, वहाँ पर ignored होता है। तो वहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही आपको रिकॉर्ड करनी है। जैसे 5 years पहले मैंने ये क्लासेस 20 लाख रुपीस में लिया था। आज यही क्लासेस की मार्केट के अंदर प्राइस 50 लाख हो चुकी है। फिर भी भले उसकी मार्केट प्राइस 50 लाख की है लेकिन मेरे को 20 लाख ही दिखानी है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो कॉस्ट प्राइस है वही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मार्केट प्राइस नहीं रिकॉर्ड कर सकते। जैसे एशियन टाइल्स है, उसने जब वो लैंड परचेस की थी तो 5 करोड़ की थी। आज वही लैंड की वैल्यू 100 करोड़ है, तो मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है लेकिन उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 करोड़ ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट की लिमिटेशन है, मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड। आप मार्केट वैल्यू नहीं लिख सकते, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली कॉस्ट। तो एक बड़ी लिमिटेशन है कि कई एसेट की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, फिर भी हमें कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड करना है, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो रियल एसेट की वैल्यू है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर, use of estimates. In accounting, items like bad debt reserve is determined on estimation. If estimates are mistake oriented, it will be reflected in the accounts. But these kinds of estimates are done on the basis of past experience and logic. So possibility of mistake remains minimum. यूज ऑफ एस्टिमेट्स, तो कई बार क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कई एंट्री आपको एज पर योर एस्टिमेट से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। जैसे बैड डेट रिजर्व। सो व्हाट इज बैड डेट और एंड व्हाट इज बैड डेट रिजर्व? व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट
to customers. So those customers are known as debtors, and sometimes by necessary effort from debtors, due to economical weak condition of debtors, they are not able to pay his dues amount. So such amount is written off, that is called bad debt. तो कई बार आपने डेटर्स को क्रेडिट में सेल किया है, आप नेसेसरी एफर्ट लगाते हो कलेक्शन के लिए, फिर भी आप उससे कलेक्शन नहीं कर सकते, तो वो अमाउंट आपकी बैड डेट हो जाएगी, और ये है बैड डेट रिजर्व। तो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, और उसमें से 2%, 5% तो ऐसे होते हैं वहाँ से कलेक्शन आपको नहीं मिलता, आप कुछ भी ट्राई कर लो लेकिन वो अमाउंट आपको कलेक्ट नहीं होता। तो ऐसे जो डाउटफुल डेटर्स है, डाउटफुल डेटर्स, उस पर एक रिजर्व कैलकुलेट होता है, वो बैड डेट रिजर्व है कि भाई 2% डेटर्स का पैसा नहीं मिलेगा या 1% का नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर बिजनेस के अंदर वो बैड डेट रिजर्व रिकॉर्ड होता है, बट इट इज़ ऑन एस्टिमेशन। जैसे मेरे 50 स्टूडेंट है सपोज 12th कॉमर्स के अंदर, तो मैं सोचता हूँ कि 50 में से 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिसकी फीस मेरे को नहीं मिलने वाली है, इट इज़ माई एस्टिमेशन। कभी 50 में से 2 ऐसे हैं जिसकी फी नहीं आएगी, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, बट इफ एस्टिमेट्स आर मिस्टेक ओरिएंटेड, लेकिन मेरा एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 50 स्टूडेंट सभी की फीस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है भी एक की ना आए और 49 की आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 45 की मिले और 5 की ना मिले, तो मेरा एस्टिमेट रॉन्ग भी तो हो सकता है। तो अगर आपका एस्टिमेट गलत हुआ तो उससे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि सभी के एस्टिमेट तो सही नहीं रहते। आप 8th के और 9th के अंदर थे, तो आफ्टर एग्जाम आपने भी एस्टिमेट किया होगा भी मेरे इतने परसेंटेज आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली आ जाते हैं, और कई बार उससे कम भी आ सकते हैं, कहीं ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये एस्टिमेट अगर आपका गलत हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे एस्टिमेट लगाने हैं तो अगर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है और लॉजिक के मुताबिक अगर करो तो द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक रिमेन्स मिनिमम, तो थोड़ी मिस्टेक आप मिनिमम हो ऐसा हो सकता है। And last thing, that is dual standard. There are 2 important components of accounts: profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account, which is known as income statement, is prepared on the current prices, while items of balance sheet are disclosed at old price. This kind of disparity prevails. So dual standards. So there are mainly 2 important components, 2 important accounts in business. One is a profit and loss account and second is a balance sheet. ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में आगे के चैप्टर का आपको सिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows how much profit you earn at the end of the year. तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है वो करंट प्राइस जो है उसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। वाइल बैलेंस शीट शोज इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है उससे वो बैलेंस शीट से आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो एसेट है वो ओल्ड प्राइस पर रिकॉर्ड होता है। मैंने आगे बताया था कि भाई हिस्टोरिकल से ही रिकॉर्ड होता है, जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग, वो ओल्ड प्राइस पर ही रिकॉर्ड होगा। तो अब ये क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप करंट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो, और बैलेंस शीट के अंदर सभी एसेट ओल्ड प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो। सो दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी प्रिविल्स। यहाँ पे ड्यूल स्टैंडर्ड है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस करंट प्राइस पर है तो बैलेंस शीट भी करंट प्राइस पर होनी चाहिए। लेकिन अकाउंट की ये लिमिटेशन है कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस करंट प्राइस पर रिकॉर्ड होता है,
or balance sheet old price. So this is the limitation of accounting. So today we discussed advantages and limitation of accounting. तो प्लीज़ उसको नोटबुक में लिख लो और रेडी कर दो. वैसे ऐसी लॉन्ग थियरी एग्जाम में नहीं आती, बट इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज. आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, आपका फाउंडेशन अच्छा हो, इसीलिए मैंने बनाया है. थैंक यू वेरी मच.